Okay. Let us start with a prayer to God. And this prayer is in Hindi. अच्छा रहना सिखा, अच्छाई करना सिखा. It's a prayer to God for all of us. अच्छा रहना सिखा, अच्छाई करना सिखा. सच्चा रहना सिखा, सच्चाई करना सिखा. कदम कदम पर पड़ती है जिन्हें सहारों की जरूरत है मालिक. हम संबंधों को अकेला चलना सिखा. हम संबंधों को अकेला चलना सिखा. तालियां नहीं बजाते आप लोग? How many of you have heard the word chiropractic? Nobody has heard the word. How many of you have heard? नहीं सुना है. कितने लोगों ने थेरेपी का नाम सुना है? थेरेपी नहीं, कायरोप्रैक्टिक छोड़ दो, कोई भी थेरेपी. नहीं, वो एक्यूप्रेशन है. थेरेपी, खाली वर्ड थेरेपी. क्या मतलब, क्या होता है थेरेपी का? या एंड पूरा और कुछ, पूरा और थेरेपी मतलब और आगे बताइए ना. मेथड ऑफ ट्रीटमेंट और इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज and prevention also, and also therapy is also go little ahead. Healing and also therapy is also to unfold the sources of the boundless energy which are there in our systems. The actual meaning of therapy is not to get rid of disease, but also to get the maximum wellness which is there inbuilt in all of us, जो हम सब में है. रियल थेरेपी का मतलब ये है. और रियल थेरेपी पता है कैसे होती है? जो रियल थेरेपी होती है, when you have courage to be silent and alone, when you have courage to be silent and alone, तो रियल थेरेपी अक्कर होती है. और जो आर्टिफिशियल थेरेपीज होती हैं वो सबके बीच में होती है. डॉक्टरों से होती है, थेरेपिस्ट से होती है. There are 183 therapies so far invented, but the real therapist is some entity within our heart, which always gives you the sense of wellness, the boundless energy. Now, chiropractic is a word. Therapy is also a word derived from Greek language. Chiropractic is also Greek language. Chiro meaning hands, practic meaning healing, healing with the hands. In 1895, in Canada, Dr. Palmer, there was a farmer called Mr. Palmer. Mr. Palmer lost his all three sons due to meningitis, the infection of the brain line, and he lost all three because doctors said we don't have medicine for this, we don't have any remedy for this, we don't have any solution for this. And he was so much shocked, deeply shocked, that he went on the journey, adventurous journey, to find out why there is no solution, because there was some conviction in his mind, or God had different plans of farmer, and from farmer he became doctor. He came up with this therapy called chiropractic therapy. Chiro meaning hands and practic meaning healing. This is a drugless self-help therapy. Drugless self-help therapy, and it is essentially to ease pains and aches, swellings, numbness, and plus infections also. It is well-known fact that for infections, allopathic antibiotics are available, but through chiropractic therapy also we can heal the infections. Now, this chiropractic therapy originated by Dr. Palmer. Originally he was a farmer, and he came upon with this therapy of spinal manipulation therapy. Now, he came upon with 700 points in the spine, few hundred points in the ear, in the mastoid bone behind the ear, and few hundred points in the feet, about 700 points, 800 points in the feet also. And these points, when properly
when they are properly manipulated, or manipulation is a dirty word, touched upon, they are touched with the soft hands, the healing hands, they start certain circuits in the brain. Our brain is the central commanding machine. The entire body is being controlled by our central boss, this central computer, and there are many circuits there, and with touch of certain radical points in feet, ears, hands, and particularly spine. In chiropractic therapy, spine is main. Reflexology, the feet are more important. So when we manipulate certain points in certain fashion, there is a mechanism, there is a technique, which I learned from my teacher called Mr. Kapoor. Mr. Kapoor, who practiced for 52 years in Vashi, this chiropractic therapy, and he served humanity, and really served humanity because he never charged money from people. And normally people in slip disc, cervical spondylitis, migraines, they suffer and they go through surgeries for spondylitis and slip disc. But here was a person, unfortunately, I came across Mr. M.L. Kapoor, who taught me this, who gave me this gift and skill to heal the slip disc, particularly the lower backache, sciatica, and spondylitis with this technique. Now, this technique, this therapy, says one very, very important vital thing, absolutely important vital thing. And my teacher taught me, and even Dr. Palmer also has stated very clearly, कि जैसे, this English is okay or should I say in Hindi also? हिंदी में बताऊं? Your comfort is more important. ठीक है, जो हिंदी में, जो अंग्रेजी में. तो जैसे इन्होंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीमती बात बताई है. दो कीमती बातें बताई हैं. पहली कीमती बात बताई है कि ह्यूमन बीइंग इज यूनिवर्सल. यूनि मतलब सिंगल, मतलब किधर भी दो इंसान नहीं है, इंसान एक ही है. वही 72,000 नसें, वही 4,000 मसल्स, वही ब्रेन के सिस्टम्स, वही किडनी के सिस्टम्स, वही लीवर के सिस्टम्स, वही रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, वही रिप्रोडक्शन सिस्टम, वही सब कुछ वही है, यूनिवर्सल. या वही ब्लड केमिस्ट्री है, वही ब्लड पैथोलॉजी है, सब कुछ वैसे का वैसे, सब सारे कंट्रोल्स ब्रेन के हाथ में है. तो इट इज यूनिवर्सल. तो ये जो थेरेपी है वो किधर भी, अमेरिकन के ऊपर भी लगा सकते, तो भंगी के ऊपर भी लगा सकते, तो राजा के ऊपर भी लगा सकते, तो किसी इंडियन के ऊपर भी लगा सकते, तो अफ्रीकन के ऊपर भी लगा सकते. बिकॉज जो साइटिका नर्व आप में है, आप में है, आप में है, सब जगह पे एक ही तरह स्थित है. ब्रेन से शुरू होती है, स्पाइन में जाती है, लीवर से होके बाइफर को होकर बाकी स्पाइन में आके दोनों लेग्स में जाती है. एक ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया इन्होंने. दूसरा सबसे कीमती विचार जो इन दोनों टीचर्स ने दिया है वो ये दिया है कि जैसे कंप्यूटर के अंदर, जब कंप्यूटर बनाया गया तो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम्स इनबिल्ट किए गए, रिकवरी सिस्टम्स इनबिल्ट किए गए, रिट्रीवल सिस्टम्स इनबिल्ट किए गए कंप्यूटर के अंदर. उसी तरह से हमारा ये जो ब्रेन जो हाईली कंप्यूटराइज्ड है, हमारे सारे रिलीविंग सिस्टम, रिट्रीविंग सिस्टम, रिकवरी सिस्टम सारे अंदर इनबिल्ट हैं. तो अगर इंसान ने कंप्यूटर बनाया है, उसके अंदर सारे रिट्रीविंग सिस्टम बना दिए हैं, तो कुदरत इतनी फूल तो नहीं है, कुदरत इतनी पागल तो नहीं है कि हमारे अंदर रिट्रीव सिस्टम नहीं है. तो जैसे ही ये फेथ, जैसे ये विश्वास और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आदमी के दिल में जाती है, अरे मेरे अंदर ही सारे सॉल्यूशंस हैं, मेरे अंदर ही सारे रिकवरी सिस्टम्स हैं, खाली मुझे थोड़ा सा नेचर के साथ कोऑपरेशन करने का है, खाली मुझे थोड़ी सी नॉट्स खोलने की है. और जैसे ही थोड़ी सी नॉट्स खोलनी है और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी है, खास करके एक्सरसाइज पैटर्न और डाइट पैटर्न में मुझे चेंजेस लानी है, हीलिंग अपने आप ही होती है, वेलनेस अपने आप ही आ जाती है और आदमी बैलेंस की तरफ जसो जाता है. ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी नेचर के साथ नहीं है, ट्रेजेडी डॉक्टर्स के साथ नहीं है. ट्रेजेडी ये है कि हमें बहुत जानकारी है आज के युग में, हमें सब कुछ मालूम है, खाना कैसा खाना चाहिए, खाना क्या खाना चाहिए, हमें सब कुछ पता है, एक्सरसाइज करनी चाहिए. लेकिन ट्रेजेडी ये है कि हमको अक्ल तो है लेकिन अमल में नहीं आती. और जब भी अक्ल की जानकारी अमल में नहीं आती है तो उल्टा प्रॉब्लम जो सो ज्यादा होता है.
और जो नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं, राइट टाइम पे खाना खाइए से साधारण से सरल से प्रिंसिपल्स हैं, राइट टाइम पे खाना खाना चाहिए और सही खाना खाना चाहिए और सही एक्सरसाइज करना चाहिए. यू कांट गो रॉन्ग इन एज फार एज acquiring the disease is concerned. You can't go astray as far as the infections are concerned, pains are concerned. So the basic जो regiment है वो eating right, thinking right and exercising right. ठीक है. Now coming back to chiropractic therapy में वापस आ जाते हैं. ये दो principles पे काम करता है. ये दो नेचुरल इंफॉर्मेशन पे काम करता है और जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर chiropractic थेरेपी काम करती है वो एक ही प्रिंसिपल है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड सर्कुलेशन. किसी भी तरह से ब्लड प्यूरिफाई हो जाए और किसी भी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए. घूम फिर के बात एक ही आ जाती है, हाउ यू प्यूरिफाई योर ब्लड एंड हाउ यू सर्कुलेट योर ब्लड. ब्लड प्यूरिफिकेशन भी आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ नेचुरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. बाकी जो सो नेचर जो अंदर इनबिल्ट सिस्टम्स है वही जो सो करते हैं. सो कायरोप्रैक्टिक थेरेपी में ये जो समझो लोअर बैक का अगर हम सिस्टमेटिक ले लें कि लोअर बैक पेन है, आप लोग में से किसी को लोअर बैक पेन है? एनीबडी सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक एक लिटिल, तो यू कैन हैंडल इट विद एक्सरसाइजेस. हाँ हाँ. ओके. But you are following what acupuncturist suggested you, the exercises and other things? Yeah. You, I am also lecturer like you. Okay, great. I do whole body activation. I do blood circulation and other things. I learned from Dr. Dean on this. So like that. But as you say correctly, we don't practice what we know. That is the reason. So most of the problems actually are they are said that modern lifestyle defects, stress defects. These are lame excuses actually. These are lame excuses. The stress both it is essentially as the spiritual people say, laziness. Everything boils down to laziness and ignoring, जैसे सामने आपका समोसा और एप्पल हो तो ज्यादातर हाथ किस तरफ जाता है सर? समोसे की तरफ जो से ज्यादा. मौसम्बी जूस और कोक को आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, बनाना के बारे में, मिल्क के बारे में. आपको पता है मिल्क सारे विटामिन इंक्लूडिंग विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, सारे विटामिन ए इसमें मिल्क में है. और अगर मिल्क में हल्दी मिलाई जाती है तो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक का काम करता है. और बहुत अच्छे से उस मिल्क की प्रेजेंस में कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड मैग्नीशियम की एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है, जो कि हमारे बोन्स और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है. और तो और हल्दी वाला दूध एंड एप्पल साथ में लेने से उसमें से दो केमिकल्स पैदा होते हैं. वो दो केमिकल्स में एक लेसिथिन होता है, एक B12 होता है. B12 जितने भी हार्ड आर्टरीज हैं उसको नरम करता है और लेसिथिन ब्लड के फैट्स को पिघाल देता है. ब्लड के अंदर फैट्स होते हैं उसको पिघाल देता है. और अगर आप आंखों में झांक कर देखेंगे, आंखों से पूरा वो डायग्नोसिस हो सकता है, तो आंखों के आइरिस पे, आंखों की पुतलियों पे एक व्हाइट कलर का लेयर आता है. इसका मतलब आपका एक्सरसाइज कम है, आपके ब्लड के अंदर फैट्स ज्यादा आ रहे हैं, आप खुद को निग्लेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब आप खुद को निग्लेक्ट कर रहे हैं. तो वो जो हल्दी वाला दूध और एप्पल, जो कि मेरे पेशेंट्स के साथ डाइट का मेन यही है, मेन दो चीजें, नाश्ते में हल्दी वाला दूध एंड एप्पल, रात को सोते वक्त हल्दी वाला दूध एंड एप्पल, ये दो केमिकल्स बनाता है. अपार्ट फ्रॉम अदर केमिकल्स ए, डी, के, वो अलग बात है. लेकिन लेसिथिन और B12 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ब्लड फैट्स को जलाता है और वेट लॉस में, पेन्स रिलीज में बहुत काम आते हैं, बहुत सारे काम आते हैं. अगर